हाँ जी, गुड मॉर्निंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ 24 ਤਰੀਕ 24 ਤਰੀਕ ਨਵੰਬਰ ਨਵੰਬਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਮੈਕਸ ਦੇ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ। ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਓਮੈਕਸ ਚੌਂਕ ਦੇਖਣ। ਵਾਇਆ ਬਾਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੈਕਿੰਗ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੈਕਿੰਗ ਤਾਂ ਵੀਅਰ ਸਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂ, ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ, ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੋਂ। ਹੁਣ ਬਸ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਆ। ਪੁਲੀਆ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਬਿਸਕੁਟ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਲਗੇਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਲਗੇਜ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਬਹਿਣਾ ਵਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਕਰਨ, ਤੇ ਲੰਚ ਤੱਕ ਆਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ 'ਚ ਦਵਾਂਗੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਰੇ ਜਨਾਬ? ਜਨਾਬ ਆਪਾਂ ਜੀ ਪੂਰੇ 12 ਵਜੇ ਘੜੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਘਰੇ ਆਉਣਾ ਜੀ। 12 ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। 12 ਵਜੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨਕਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਦਿਖਣੀਆਂ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੱਗੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 3 ਵਜੇ ਦਾ ਰੀਚ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ 2:15 ਹੋ ਗਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਢਾਬੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੰਡੇ ਕੱਢ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਰੋਕ ਕੇ ਪੱਤੀ ਠੋਕ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੁੱਡ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁਛ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਸਿਕਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਚਾਹ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਮਕਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਪੀ ਲਿਆ। ਸੈਂਡਵਿਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਲਓ ਜੀ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਤਰਨ ਲੱਗੇ। चांदनी चौक में लगेगी बाहर। ਹੁਣ ਲੱਗਿਆ ਉਤਰਨ। ਉਹ ਲੈ ਵੀ ਉਤਰ ਗਏ। ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ। ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਬਪੜਾ ਬੀਰ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ 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 ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ।
जिंदी नाम ते आया गए मशरक़ का नानक ते मुख उजले इति सुखीना जिंदी नाम ते आया गए मशरक़ का नानक ते मुख उजले इति सुखीना पवन गुरु पानी पिता माता पवन गुरु पानी पिता माता तत्मात इस रात कोई दाई दाया इस रात कोई दाई दाया इने सब जगत दुनिया नाम ते आया हरे मशरक़ का नानक ते मुख उजले कितनी शुक्रिया नाम ते आया। इधर इधर ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਿੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਵੈਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰਾਊਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਰੌਕਸ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਜੈਨ ਸਨੈਕਸ ਕਾਰਨਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਟਰੈਂਸ, ਗੇਟ ਨੰਬਰ 3। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉੱਪਰ ਹੀ ਨੇ। ਗੇਟ ਨੰਬਰ 5 ਚੈੱਕ ਕਰੋ। Really know what's going on, and even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret stars in your heart so slow. पाकिस्तान से आए ज्ञानी गुरचरण सिंह की एक छोटी सी हड्डी जो जान थी फतेहपुरी। चांदनी चौक के अंदर, और मेरा मानना है हर शहर में एक चांदनी चौक छुपा हुआ है, उसको उभार के लेके आना है। तो आपका लुधियाना में भी जो कुमारखंडी प्रोजेक्ट है वो इसी का रेप्लिका बनेगा। तो आज जो प्रोजेक्ट हमने दिखाया है आपको, एक जस्ट एक आपने अभी 50% देखा है, कुछ अभी सरप्राइजेस बाकी है आपके लिए। तो विल प्ले विद द पीपीटी, जसन इसको आगे बढ़ाएंगे पीपीटी को। गुड इवनिंग एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। भाई एक बार ना बस प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो। अंकुर जी ना बहुत एक हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, लाइक 10 दिन पहले की बात है। कहते जशन जब यहाँ पे एक पहला खड्डा खोदा था ना, तो आसपास के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी गलियों में लोग बैठे हुए हैं, वो बोल रहे थे कि यहाँ पे ना कोई मॉल नहीं बन सकता। कहते इतने जहाँ पे इतना भीड़ भड़का हो, जहाँ पे इतनी दुनिया की ऑलरेडी लेगेसीज चल रही हो। जब मैं चांदनी चौक की बात करता हूँ, ये जस्ट एक मॉल नहीं है, दिस इज अ लेगेसी ऑफ द पीपल जो पिछले 50-50, 100-100 साल से बैठे हैं। इस जगह को शाहजहानाबाद बोला करता था पहले। इसका मतलब ये था कि शाहजहां ने अपनी बेटी के लिए इसको, इस बाजार को बनाया हुआ था। जब भी हम इस मार्केट की बात करते हैं, दिस इज द ओल्डेस्ट मार्केट ऑफ इंडिया, ये भारत का सबसे पुराना बाजार है। तो हम कोई रेजिडेंशियल इलाकों के बीच में कमर्शियल की बात नहीं कर रहे,
हम ऑलरेडी बाजार के सबसे प्राइमेस्ट एरियाज की बात कर रहे हैं जब हम चांदनी चौक की बात करते हैं, चाहे हम वो यहाँ की बात करें चाहे हम लुधियाना की बात करें। भाई प्लीज एक प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करना। तो जब ओमेक्स टाउन को कंसेप्चुलाइज किया गया था, सबसे बड़ी बात ये थी कि इस एरिया की जितनी दिक्कतें हैं वो हम रिमूव करेंगे। यूजुअली जब भी कमर्शियल बनाते हैं तो दिक्कतें क्या होती हैं कि भाई लोग कहाँ से आएंगे, ब्रांड कहाँ से आएंगे। वो इन मार्केट्स की दिक्कतें हैं ही नहीं है। किसी ब्रांड को लेके आना या लोगों को लेके आना दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑर्गेनिक अगर मैं फुटफॉल की बात करता हूँ, 80-90 हजार बंदा रोज उतरता है मेट्रो स्टेशन से, जो कि बिल्कुल पीछे है। 1-1.25 बंदा रोज चलता है इन सड़कों के ऊपर जहां से हम अभी होके आए हैं। तो अगर आप ये बोलो कि लोगों के आने की दिक्कत है, वो नहीं है। बट दिक्कतें क्या थी इस पूरे एरिया की कि पार्किंग कहाँ पे होगी। सबसे बड़ी बात है कि चांदनी चौक के अंदर पार्किंग कहाँ पे होगी। तो हमने उस चीज को पॉसिबल किया है। समवेयर अराउंड 2200 से 2500 गाड़ी रोज एक टाइम पे पार्क हो सकती है। जब मैं बोलता हूं एक टाइम पे, इसका मतलब है 10,000 गाड़ियां आएंगी जाएंगी दिन के, जो आज तक कभी पॉसिबिलिटी नहीं थी। इस बाजार की या कोई भी और बाजार जहां पे लेडीज आती हैं या जहां पे जो बाजारों को लेडीज चलाया करती हैं, कहने का मतलब जहां पे आपके लहंगे बिकते हैं, जहां पे आपके ऑर्नामेंट्स बिकते हैं, जहां पे ज्वेलरी बिकते हैं, वहां पे एक भी ढंग का वॉशरूम नहीं था। बट प्लीज आप में से कुछ लोगों ने विजिट किया होगा मेरा वॉशरूम, यू कुड हैव सीन वी हैव 5 स्टार स्टैंडर्ड्स के वॉशरूम्स ओवर हियर। तो ये सारी दिक्कतें थी। दूसरी बात क्या थी, बाजार के अंदर एक और दिक्कत होती है सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग की। यहाँ पे मैं एक टाइम पे कम से कम 40 से 50 शोरूम से खाना आपको ऑर्डर करवा सकता हूँ और एक जगह बैठ के खिलवा सकता हूँ, जो आज तक कभी पॉसिबिलिटी थी नहीं। यूजुअली अगर आप किसी भी मार्केट के अंदर जाओगे, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर तक सारा का सारा भरा हुआ है चांदनी चौक। यहाँ पे क्या है, लोग पहुंच ही नहीं पाते थे वहां पे। यहाँ पे हमने हर फ्लोर पे प्राइवेट ड्रॉप ऑफ दिया हुआ है। आप अपनी कार लेके आए, आप अपने ड्राइवर को लेके आए। अगर आपको सेकंड फ्लोर के काम है तो सेकंड फ्लोर पे आपको ड्रॉप ऑफ मिलेगा पहले, और जाते हुए आपका ड्राइवर आपको पिकअप करेगा सेकंड फ्लोर से, जो आज तक कभी भी किसी भी रिटेल के अंदर पॉसिबल नहीं था दिल्ली के। तो बहुत चीजें हमने पहली बार की हैं, डन इट वेरी वेल ओवर है। सेकंड स्लाइड है। हाँ जी। तो जब भी हम रिटेल को बेचते हैं, यहाँ के रिटेल के बीच में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप इस तरह के प्रोडक्ट को बना रहे हो, पोजेशन कब होगा जी, पोजेशन हो जाएगा, कहीं ओसी ना फंस जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ओसीज आ चुके हैं। यूजुअली ओसीज आने में 2 महीने 2.5 महीने 4 महीने लगा करते हैं। हमारे यहाँ पे ओसी 32 दिन में आ गया था ऑलमोस्ट। सो वी वर द फास्टेस्ट इन दोस टर्म्स ऑल्सो। जिस चीज को हमने बनाने के लिए 4.5 साल बोला था, समवेयर अराउंड 3.25 साल में हमने डिलीवरी भी दे दी है। वी आर ऑलरेडी अहेड ऑफ टाइम। इस टाइम के ऊपर ओसी आ चुका है, फिट आउट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। जब आपने नीचे का चक्कर लगाया होगा, आपने देखे होंगे बहुत ब्रांड्स की मास्किंग ऑलरेडी हो चुकी है वहां पे। यू सी अ लॉट ऑफ ब्रांड्स कमिंग अप इन वेरी नियर फ्यूचर। नेक्स्ट स्लाइड भाई। ये एक्चुअल पिक्चर है। एक्चुअल पिक्चर तो आप सबने देख ही लिया। नेक्स्ट तो हाँ, इस स्लाइड पर रुकते हैं। सबसे ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, दिस वेडिंग सीजन इंडिया विल शॉप। जब मैं बात कर रहा हूँ वेडिंग सीजन की, तो इंटेंट क्या है, इससे थोड़ा सा आपको लीजिंग का इंटेंट पता चलेगा। जब मैं वेडिंग की बात करता हूँ तो ग्राउंड पे आपको मेजर, हमने जो उस जोन का नाम रखा है उसको बोलते हैं ज्वेल कोड। ज्वेल कोड का मतलब क्या हुआ, मेजर ज्वेलरी ब्रांड्स आपको वहां पे नजर आने वाले हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, एंड मेजर लहंगा ब्रांड्स, मेजर वेडिंग ब्रांड्स। वेडिंग ब्रांड्स का मतलब लाइक छाबड़ास हो गए, लाइक मीना बाजार हो गया, लाइक कल्याण ज्वेलर्स हो गया, लाइक सेंको डायमंड्स हो गया, मिया हो गया, कैरेट लेन हो गया। आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स मिलने वाले हैं। तो जोनिंग इस तरीके से की है कि डेवलपर ने, मतलब ओमेक्स ने लीजिंग राइट्स रखी हैं अपने पास, जिसकी वजह से हम एक डेकोरम मेंटेन कर सकते हैं पूरी की पूरी मार्केट का। ऐसा नहीं है कोई बंदा कुछ भी काम कर रहा है यहाँ पे। तो एक डेडिकेटेड एरिया में आपको ऑर्नामेंट्स के लिए जोन मिलेगा। एक डेडिकेटेड एरिया के अंदर आपको लहंगोज के या जितने भी लहंगे के ब्रांड्स हो गए या जितने भी शेरवानी के ब्रांड्स हो गए, आपको वो मिलेंगे। प्लस अगर किसी को भी फूड के लिए कुछ करना है, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू ईट समथिंग, तो डेडिकेटेड एरिया हमने सेकंड फ्लोर पे बनाया है, जिसको हम बोलते हैं दावतपुर। दावतपुर इज द बिगेस्ट फूड कोर्ट ऑफ दिल्ली। जब आप इसके बाद देखोगे, हमने वो सरप्राइज एलिमेंट छोड़ा हुआ है आपके लिए। जब आप देखोगे, दैट इज द बिगेस्ट फूड कोर्ट ऑफ दिल्ली। जब मैं फूड कोर्ट के बिगेस्ट होने की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक ही टाइम पे 70-80 ब्रांड्स एक ही जगह पे बैठे हुए मिलेंगे, और एक ही टाइम पे मैं कम से कम 2500 से 3000 बंदे को बिठा के खाना खिला सकता हूं, जो आज तक कभी पॉसिबिलिटी ही नहीं थी चांदनी चौक के अंदर। तो जिन जिन जगह पे इस तरीके के काम हुआ करते हैं ना, वहां पे रैशनल नहीं होते कोई भी ग्राउंड के। कोई बंदा लॉजिक नहीं पूछ सकता कि इस जगह के अंदर किराया कितना आता है। किराया तो तब डिसाइड होगा ना जब आप रेवेन्यूज देखोगे उस जगह के। तो
किसी भी तरह के ब्रांड के लिए जो यहाँ पे आ रहा है, सबसे बड़ा फुटफॉल और सबसे बड़ा रीजन ये है कि यहाँ पे लाख सवा लाख बंदा उसको मिला करेगा। और जिस भी फ्लोर के ऊपर या जिस भी मॉल के अंदर आपको इस तरह का क्राउड मिलता है, वहां पे कुछ भी किराया हो सकता है, कुछ भी किराया हो सकता है। तीसरी चीज, दावतपुर को जब आप देखोगे, हमने बहुत ब्यूटीफुली उसको एक कंसेप्ट दिया हुआ है। उसकी जो भी प्रेजेंटेशन है वो इसके बाद हम स्पेशल आप लोगों के लिए है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। उस तरीके का ही दावतपुर हम लुधियाना में बना रहे हैं, इवन बेटर देन दैट। मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज वो आज की कंसेप्चुलाइजेशन है। ये जो आप देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं 3.5-4 साल पुरानी कंसेप्चुलाइजेशन है, ठीक है। ये एक्चुअल अंदर के इंटीरियर्स हैं जो आपने देख लिए हैं। किसी को कोई डाउट है यहाँ के लिए? आपने कुछ पूछा हो कि ये कैसे होता है जी, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है जी, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया, कुछ भी सर? डन सर। ये एक्चुअल इमेजेस अंदर की। वी वर स्टैंडिंग ओवर हियर, हम यहीं से होते हुए गए थे, जहां पे आपने देखा हो तो कल्याण का फिट आउट चल रहा था यहाँ पे। लकीली आप लोग सारे काम करते ही हो ओमेक्स के लिए, बट जो लोग नहीं करते थे पहले, ये बेसिकली उनके लिए प्रेजेंटेशन बनाई हुई है कि हमें ओमेक्स क्यों करना है जी। उसका आंसर वैसे आपको या उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग लाइक अ फैमिली विद अस। तो ऐसा नहीं है कि जी आपको क्यों करना चाहिए। प्लीज कीप ऑन डूइंग, प्लीज कीप ऑन सपोर्टिंग अस, जैसे आप कर रहे हैं। दिस इज आवर प्रेजेंस। यूजुअली अगर आप देखोगे, लोग ये बोलते हैं कि ओमेक्स ना एक जगह पे एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जी एक टाइम पे, बट जब आप देखोगे ना कि हम पैन इंडिया के बीच में कितने प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो हम कम से कम एक टाइम पे 8 से 10 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं हमारे पैन इंडिया के बीच में। अगर प्रेजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो कम से कम 26 सिटीज में हम आपको नजर आएंगे। इट्स नॉट अ स्मॉल बेस। कोई भी बड़े से बड़े डेवलपर को अगर आप उठा के देखते हो तो ऑलमोस्ट उसके बराबर ही मिलेगा आपको जो डिलीवरी है हमारी। डन जी। दिस इज आवर मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मोहित गोयल, जिनकी विजन के साथ हम काम कर रहे हैं आगे। प्लीज गो हेड। ये मिस्टर जतिन गोयल जी। सो दिस इज द मोस्ट पावरफुल लाइन ऑफ द स्लाइड। A once in a 300-year opportunity located in the heart of चांदनी चौक। ना तो आज तक ये चीज हुई है, ना कभी आगे ये चीज होनी है। किसी भी इलाके के बीच में आप बैठे हो, पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, किसी भी इंडियन को आप बोलोगे आई ओन अ प्रॉपर्टी इन चांदनी चौक, आपको बताने की जरूरत नहीं है चांदनी चौक क्या है। दूसरी बात, एक भी एकड़ यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिल सकता कि यहाँ पे कोई और डेवलपमेंट हो सकती है। जिन इलाकों के अंदर गजों के अंदर बिल्डिंगें बना करती हैं, 800, 900, 1000 गज के अंदर, वहां पे हम एकड़ों में बात कर रहे हैं, और टेक्निकली हम सबसे आखिरी 4.5 एकड़ की बात कर रहे हैं। वी आर ऑलमोस्ट रेडी। प्लीज कोई भी फीडबैक्स हो, कुछ भी हो, प्लीज आप इंडिविजुअली मेरी टीम से मिलिए, उनको दीजिए, एंड प्लीज कीप कनेक्टेड विद अस, ताकि और किसी भी आपका कोई भी इन्वेस्टर किसी भी तरह का, यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, हमारा ब्रैकेट जो है इन्वेस्टमेंट का 60 लाख रुपए से लेके 30 CR तक है। तो ऐसा नहीं है कि हम हर तरह के इन्वेस्टर को कैटर कर सकते हैं। किसी भी तरह के अपने इन्वेस्टर को आप यहाँ पे एंटर करवा सकते हैं। ही विल बी हैप्पी विद यू फॉर लाइफ टाइम। ये मेरी कमिटमेंट है। डन सर, थैंक यू सो वेरी मच। इट वाज फैंटास्टिक इंटरेक्टिंग विद यू गाइस। थैंक यू सो मच। एथनिक वेयर को डील किया है, तो वो लेडीज वेयर है, मेंस वेयर है। एक पर्टिकुलर सेक्शन उसमें सिर्फ मेंस वेयर के लिए किया है, जिसमें ब्रांड्स हमारे पास में मान्यवर एथनिक्स बाय रेमंड्स, तस्वा,